where participants are requested to adhere the time limit and keep their questions within 15 seconds. Now let's get directly to the battle. One of the biggest strengths of AI is it helps you understand things at your own level and at your own pace. In a country like India, where talent lies everywhere but resources do not, AI is a powerful opportunity. In fact, it's a golden opportunity for the Indian youth. At the same time, we must acknowledge the risk. AI is being misused, especially against women's, but the real answer is not fear or rejection. It's about accountability. It comes from adapting and improving them. So yes, AI has challenges, but with real intent and control, it will create far more opportunities than threat for Indian youth. Thank you, Jen. Our next speaker is Vaishnavi Yadav. कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारतीय युवाओं के लिए खतरे से अधिक अवसर लाएगी। न ही ज्ञानी ने सदृश्य पवित्र मिह विभाते, भगवद गीता की लिखी हुई यह श्लोक यह बताती है कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं। में लगभग 97 मिलियन यानी कि 97 मिलियन नौकरियों को रूपांतरित करेगी और उत्पन्न करेगी, ना कि उसे समाप्त करेगी। वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर भी देते हैं। एआई ने शिक्षा को सीमित सीमाओं से मुक्त कर दिया है। डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजनाएं जो हमारे सरकार द्वारा दी गई हैं, उनका प्रयोग करके हम अपने नई तकनीकों को सीख सकते हैं और जान सकते हैं। एआई को हम एक सही रोजगार प्रवक्ता भी कह सकते हैं। 15 seconds. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युवाओं के लिए अवसर से अधिक खतरा इसलिए पैदा कर रहा है क्योंकि जिसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा युवा वर्ग करता है, जैसे आईटी सेक्टर में कर सकते हैं, उस चीज़ पे कोई भी संभव चीज़ें नहीं सामने आई है। Artificial intelligence will definitely take your jobs if you are not reskilling yourself. Or I can say, artificial intelligence is not taking your jobs, but a person knowing artificial intelligence will definitely take your job. And this is the point why in every school, in every university, in every institution, the students are being taught what is the proper usage of AI, how to use AI properly, in effectively and efficiently manner. There was one time when we was telling by our parents that you should have the knowledge of computers. That artificial intelligence will create more opportunities than threat to Indian youth. Every major technological change in history, from machines to computers to internet, was first seen as threat. Yet each time jobs did not disappear, they evolved. Artificial intelligence is simply the next step in the journey. India AI and Digital India, the government is actively preparing the Indian youth for an AI-driven future. Artificial intelligence empowers youth to be more productive, innovative and entrepreneurial. It belongs to the fearless. इसलिए मैं पूरे गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि AI is not a threat to Indian youth. It is the biggest opportunity of our generation. The future is AI and the future is India. Thank you, Jen. Moving forward, the next speaker is Agrima Mishra. Greetings, ladies and gentlemen. I am Agrima Mishra from BCom first semester, standing here to speak against this motion. Today, we glorify artificial intelligence as progress. But I want to ask, and tell me honestly, at what cost? Times of India reports cases of youth forming deep emotional connection with AI chatbots, with mental health experts warning them of psychological harm. Global polls like Harvard Youth Poll have reported that 59% of youth consider artificial intelligence as a threat to their job prospect. Only 14%, I repeat ladies and gentlemen, only 14% of it consider artificial intelligence as a game or an opportunity. AI के पास न भावना है, न संवेदना और न संस्कार। तो यदि AI गिरने लेगी तो इंसान सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाएगा। मेरा तीसरा तर्क, शिक्षा में असमानता का वास्तविक चित्र। शहरी कॉलेजों के छात्र को AI को अपनाने में आगे हैं, लेकिन ग्रामीण भारत का युवा आज भी नेटवर्क, मार्गदर्शन और उपकरण में
पीछे छूट रहा है। यह अंतर केवल डिजिटल नहीं, भविष्य का अंतर है। जब अवसर समान न हो तो सफलता का योग्यता कहना अन्याय है। रामायण हमें सिखाती है शक्ति या साधन से बड़ा विवेक होता है। जिस प्रकार रावण के पास अत्याधुनिक ज्ञान, अद्भुत शक्ति और श्रेष्ठ तकनीकें थीं, लेकिन विवेक के अभाव में वही ज्ञान उसके विनाश का कारण बना। Who are starting their career just like us. Firstly, according to the McKinsey Global Institute survey, AI will cause job loss nearly 30% by 2030. Companies like TCS and Infosys has publicly stated that AI is reducing the demand of entry-level hiring. Secondly, AI is also affecting the freelance sector. शॉर्ट सर्किट या वायरिंग की दिक्कत की वजह से एनिमी को मारने के बजाय आपके लोगों को मार दिया, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एआई की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? आप लेंगे, एआई लेगा या उसका प्रोग्रामर लेगा? एक मिनट, अगर ऐसा है तो फिर सबसे ज़रूरी बात कि हम लोग जानते हैं कि तकनीक समय के साथ साथ बदलती आई है। अगर हम लोग देखा जाए बिजली, इंटरनेट, वो सारी चीज़ें भी तब खतरा थी। एआई अगर इस समय आ रहा है तो बदलाव ला रहा है। और देखो, एआई बदलाव ला रहा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन एकदम सीधा सा है कि अकाउंटेबल कौन होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि एआई को भेजा गया था इंडिया को स्किल करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए नहीं भेजा गया था। युवाओं को स्किल करने के लिए भेजा गया था एआई को। अब हम लोग एक ही अपॉर्चुनिटी को अब युवाओं की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, हार्वर्ड यूथ पोल मैंने ऑलरेडी अपने स्पीच में मेंशन कर रखा है कि रिमोट एरिया यानी बिहार, यूपी जैसे लोगों के पास मोबाइल इंटरनेट की फैसिलिटीज ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। इंडिया यूथ ऑलरेडी फैसिलिटीज को यूज कर रहा है। Stop it. You have to hand raise और moderator आपको decide करेगा कि who may speak first ना. Please maintain the decorum. Please, you speak first. Please pass the mic. अभी आपने एक चीज मेंशन करी है कि आपके हम लोगों के ग्रामीण एरिया में या फिर कैसा कह सकते हैं रूरल एरियाज में फोन्स और डाटा और इंटरनेट है। मैम, ऐसी भी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप कहाँ से वहाँ पे फोन का एक्सपेक्टेशन रख दे रही है? सेकेंडली, और जो भी जितने भी थ्रेट्स और जितने भी चीजें होती हैं यूथ के साथ, और डिप्रेशन यूथ में क्यों है? क्योंकि बहुत सारी चीजों में लोगों को ये चीज, हम लोगों की जो एल्डर जनरेशन है उसमें ये चीज लगती है कि उनके पास वो चीज सच है, विच इज नॉट ओके। एआई से अपस्किल करने का टाइम मिल रहा है। और फिर मैं वापस वही पॉइंट रिपीट करने वाली हूँ कि अकॉर्डिंग टू अ पोल ऑलमोस्ट 45% इंडियन होम्स में इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है। तो जब उन लोग को एआई ट्रेनिंग के लिए मिलेगा ही नहीं, सो हाउ कैन यू से कि क्या कहते हैं कि उन लोगों को एआई के लिए और इस प्रॉपर अपस्किलिंग मिल रही है। एंड अनदर थिंग आई जस्ट वांट टू से कि एआई जो न्यू जॉब्स क्रिएट कर रहा है वो स्पेसिफिक नीश फील्ड्स में जॉब क्रिएट कर रहा है। एंट्री लेवल जॉब्स जो कि वो रिप्लेस कर रहा है, इट क्रिएट्स अ डिजिटल डिवाइड एंड ऑल्सो क्लास डिवाइड, बिकॉज वो लोअर क्लास पीपल को उस चीज का नहीं मिल रहा है एक्सेस। आपने बोला कि एआई को अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, हम भी मानते हैं एआई बिल्कुल दे रहा है, और आपने कहा एआई डिस्प्लेस भी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन आप एक चीज समझिए कि आपके पास अगर आप किसी कंपनी के ओनर, आपके पास 2 एम्प्लॉयज आते हैं, एक है जो ग्राफिक डिजाइन में काफी अच्छा है, बस वो ग्राफिक डिजाइन में अच्छा, और दूसरा एम्प्लॉय जो है वो ग्राफिक डिजाइन में भी अच्छा है, उससे एआई की स्किल भी है, उससे एआई की नॉलेज भी है। आप किसे चूज करेंगे? यू विल गो फॉर एआई बिकॉज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। एक और सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगी कि बोला गया है कि एआई से डिप्रेशन बढ़ रहा है। मोबाइल खुद से थोड़ी उठ के आता है कि आप मुझे यूज़ करिए और ऑटोमेशन से खराब होइए। कब बोला? एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे बात की गई थी कि हम ह्यूमंस हैं जो एआई को ऑपरेट करते हैं, उसे चलाते हैं। बात की गई थी कि एआई थोड़ी होती है। एक सेकेंड, आपने बोला फोन हमें कहता नहीं है कि यूज करो मुझे, ओके राइट। जब हम लोग कोई भी फेक वीडियोस बनती है, कोई भी एडिटिंग होती है, उससे एआई की हेल्प ज्यादा क्यों ली जाती है? और इसका इस्तेमाल करके डिटेक्ट भी किया जा रहा है। It should regulate AI. मतलब AI इतना डेवलप ना हो जाए कि कंपनी ने डिसाइड कर लिया कल से हमें एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं, उनको 1 हफ्ते का नोटिस देके उनको भेज दिया कर। तो ऐसे जगह पे गवर्नमेंट को ही आके बोलना होगा कि इवन इफ यू आर लेइंग ऑफ पीपल, मे बी गिव देम लाइक a year or take some time to teach them these new skills and try to get them adapted to your new workflow. कभी-कभी बैंक जाते हैं ना, अभी भी कुछ लोग एक ही उंगली से टाइप करते हैं कीबोर्ड में, देखो कि नहीं? Because they were not able to adapt themselves. So government should do a good job regulating AI so it is not affecting, because at the end of the day everything is existing for humans. Machines should not replace humans. They should not become the priority. Cool?
So yeah, it was very good for me to listen to all your opinions and thoughts. Good job, really confident students, and wishing you experience. So there will be competition, there will be always, and it will increase day by day because it cannot. The only thing is we have to be prepared, we have to be ready for it. For example, all of you use ChatGPT, we also use it. My advice is you do not straight away go for a prompt to the ChatGPT. What you can do is you can write something on your own, you can take the help of that to refine what you have written, rather than being entirely dependent on the ChatGPT, giving it a prompt and just copying and pasting it. And these small efforts may start from your small assignments or homeworks that you are assigned. So these small changes, this temperament, creativity is a temperament. You cannot develop creativity in a night time. Sorry, during